Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Clear and audible. Okay. So we begin with a short meditation. Sit back comfortably. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. I believe in a power far greater than I am, that flows through me every moment of every day. I open myself to the wisdom within, knowing that there is only one intelligence in the universe. Out of this one intelligence comes all the answers, all the solutions, all the healing, all the new creation. I trust this power and intelligence, knowing that whatever I need to know is revealed to me, and that whatever I need comes to me in the right time, space, and sequence. All is well in my world. Okay, thank you so much. So we'll begin with today's reading then. We've started this beautiful book, You Can Heal Your Life. तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं. I'll just share the screen. Okay. Okay. So today we're going to start from I believe that we choose our parents. Each one of us decides to incarnate upon this planet at a particular point in time and space. We have chosen to come here to learn a particular lesson that will advance us upon our spiritual evolutionary pathway. We choose our sex, our color, our country, and then we look around for the particular set of parents who will mirror the pattern we are bringing in to work on in this lifetime. Then, when we grow up, we usually point our fingers accusing at our parents and whimper, "You did it to me." But really, we chose them because they were perfect for what we wanted to work on overcoming.
तो हमारे साथ जो भी होता है, दैट इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द ड्रामा, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड ड्रामा दैट इज गोइंग ऑन। तो वी चूज व्हाट वी हैव। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी ही चॉइस है। हमारे पेरेंट्स, जहाँ हम रहते हैं, country, everything. It is our own personal choice. It is based on, many lifetimes जो एक हमारा कार्मिक साइकिल बनता है, उस हिसाब से ही हमें अपने पेरेंट्स मिलते हैं, हम जहाँ रहते हैं। इट इज ऑल प्री सेट, प्री प्लान। और ये ड्रामा जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। तो वो जब हम बड़े हो जाते हैं, हम अक्यूज करते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपने मेरे साथ ऐसे किया। तो बट उसमें उनकी कुछ चॉइस है ही नहीं, वो हमारी अपनी ही चॉइस थी। और जो हमारे साथ होता है दैट इज परफेक्ट। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू अस इज परफेक्ट फॉर आवर ओन ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो भी हमारे साथ हो रहा है उससे हमारी ही ग्रोथ हो रही है। We learn our belief systems as very little children, and then we move through life creating experiences to match our beliefs. Look back in your own life and notice how often you have gone through the same experience. Well, I believe you created those experiences over and over because they mirrored something you believed about yourself. It doesn't really matter how long we had a problem, or how big it is, or how life-threatening it is. तो हमारे साथ कई बारी कई चीजें बार बार होती रहती है। सम एक्सपीरियंसेस, जैसे ऑथर कह रहे हैं, वो क्यों होता रहता है? बिकॉज हमने उससे जो लेसन लर्न करना था वो किया ही नहीं। यू नो तभी वी गो थ्रू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन टिल द टाइम वी डोंट लर्न। जो भी हमारे साथ होता है, इट्स अ मिरर ऑफ व्हाट वी बिलीव आवर सेल्फ। गुड बैड जो भी है, इट इज जस्ट अ मिरर ऑफ हु वी एक्चुअली आर, जो हमारी बिलीव्स हैं। The point of power is always in the present moment. All the events you have experienced in your lifetime up to this moment have been created by your thoughts and beliefs you have held in the past. They were created by the thoughts and words you used yesterday, last week, last month, last year, 10, 20, 30, 40, or more years ago, depending on how old you are. तो जो भी हमारे साथ आज हो रहा है, इट इज आवर ओन क्रिएशन। इट इज व्हाट वी मैनिफेस्ट इन आवर थॉट्स एंड बिलीव्स। जैसे हमने लास्ट बुक में रीड किया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी लास्ट बुक थी जो हमने रीड की, उसमें भी यही है कि वट एवर थॉट्स वी क्रिएट, दैट इज व्हाट मैनिफेस्ट्स आउटसाइड। जो भी हमारे सबकॉन्शियस को हम फीड करते हैं वो ही मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी ऑथर सेम चीज बता रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी ही थॉट्स और बिलीव्स का रिजल्ट है। जो भी हमने पास्ट में थॉट्स क्रिएट करे वो ही अभी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। However, that is your past. It is over and done with. What is important in this moment is what you are choosing to think and believe and say right now. For these thoughts and words will create your future. Your point of power is in the present moment and is forming the experience of tomorrow, next week, next month, next year, and so on. तो ऑथर यही कह रहे हैं कि जो पास्ट में हो गया, दैट इज डन। बट व्हाट कैन आई डू टुडे? आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मेरे फ्यूचर को और ब्राइट करे? व्हाट कैन आई डू राइट नाउ? डेस्टिनी इज व्हाट वी क्रिएट। Destiny starts from our thoughts, our own thoughts, our own beliefs. So what am I thinking right now? जो हो गया वो हो गया। आज से मैं क्या क्रिएट करती हूँ? That is the power. So the power is right now in the present moment. You might notice what thought you are thinking at this moment.
Is it negative or positive? Do you want this thought to be creating your future? Just notice and be aware. तो सबसे इम्पोर्टेंट है पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट्स। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि पता ही नहीं चल रहा माइंड में क्या बातें चल रही हैं। So that is why it is very important to be aware, to pay attention to what thoughts we are creating. The only thing we are ever dealing with is a thought, and a thought can be changed. Very important. The only thing we are dealing with is a thought. कुछ भी हमारा माइंड क्रिएट करता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, सोच सोच के हम इफ इट्स अ नेगेटिव थिंग वी देन हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। एवरीथिंग इज ऑल जस्ट हैपनिंग इन द माइंड, तो दैट थॉट कैन बी चेंज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो भी हमारी लाइफ सिचुएशन है, चाहे जितना भी हमें लग रहा है कि बाहर नेगेटिव हो रहा है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माइंड। हम अपने माइंड में कितना पॉजिटिव रहते हैं, बिकॉज वट एवर वी क्रिएट इन आवर माइंड विल मैनिफेस्ट। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, चाहे जितना मर्जी बाहर नेगेटिव चल रहा हो, बट देन वंस वी स्टार्ट क्रिएटिंग द पॉजिटिविटी इनसाइड, वो बाहर भी सिचुएशन में रिफ्लेक्ट होगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंड, अपने थॉट्स पे ध्यान देना, और नेगेटिव है तो उसको चेंज करना। No matter what the problem is, our experiences are just outer effects of inner thoughts. Very important. Our experiences are just outer effects of inner thoughts. चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हमें लगे, बाहर हो रही है, but we have the power, the power to create our own destiny by changing our thoughts, by paying attention to what we are thinking. Even self hatred is only hating a thought you have about yourself. You have a thought that says, I'm a bad person. This thought produces a feeling, and you buy into the feeling. However, if you don't have the thought, you won't have the feeling, and thoughts can be changed. Change the thought and the feeling must go. So it all starts with our thought. तभी इतना important है अपने थॉट्स पे अवेयरनेस लाना, अटेंशन पे करना। कोई जब हमारे अंदर भी जो सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी आता है, वो भी कहाँ से आता है? इट इज जस्ट अ थॉट दैट वी क्रिएट इन आवर माइंड, जिसके बारे में हम सोच सोच के इतना गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ हेट्रेड में जाते हैं। वी हैव द पावर टू चेंज द थॉट, एंड इट इज जस्ट अ थॉट, दैट्स नॉट हु वी आर। वो हम तो है ही नहीं, वो बस हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है, ऑल दीज illusions. This is only to show us where we get many of our beliefs. But let's not use this information as an excuse to stay stuck in our pain. The past has no power over us. It doesn't matter how long we have had a negative pattern. The point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize. We can begin to be free in this moment. चाहे पास्ट में जितना मर्जी हम नेगेटिविटी में गए, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ सैबोटाज, सेल्फ हेट्रेड, ये सब चीजें हुई, बट नाउ अब जब मुझे ये अवेयरनेस हुई है, नाउ व्हाट आई चूज टू डू इन दिस मोमेंट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो भी पास्ट में हुआ, दैट इज जस्ट गॉन, बस फिनिश्ड, ओवर एंड डन विद। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं क्या चेंज ला रही हूँ अपने थॉट्स में, अपने बिलीफ सिस्टम में, पॉजिटिव एफर्मेशंस, इन सब चीजों से वी कैन स्टार्ट रीवायरिंग आवर ब्रेन्स। ओके, बिलीव इट और नॉट, वी डू चूज आवर थॉट्स।
We may habitually think the same thought over and over so that it does not seem we are choosing the thought. But we did make the original choice. We can refuse to think certain thoughts. Look how often you have refused to think a positive thought about yourself. तो ये कभी नोट किया है कि नेगेटिविटी में कितनी इजीली हम जाते हैं, कभी अपने थॉट्स को अगर हम नोटिस करें, तो नेगेटिव ज्यादा चलता है, पॉजिटिव कम ही चलता है। तो वही नेगेटिविटी को हमने खाली ऑब्जर्व करना है। it is sometimes it gets difficult to stop thinking those negative thoughts, but when you start observing अपने आप वो हटता जाता है और उसको चेक एंड चेंज कर सकते हैं। जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ we can check and change, we can start rewiring the brain. Okay. Well, you can also refuse to think a negative thought about yourself. It seems to me that everyone on this planet whom I know or have worked with is suffering from self-hatred and guilt to one degree or another. मतलब ऑथर कह रहे हैं ये सब में है, ये गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म की एक हैबिट सब में है। The more self-hatred and guilt we have, the less our lives work. The less self-hatred and guilt we have, the better our lives work on all levels. The innermost belief for everyone. I have worked with this always. I am not good enough. एक जो हमारे अंदर होता है ना कि बहुत अपने आप मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझसे अभी नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, ये मुझसे होगा ही नहीं। We often add to that, and I don't do enough or I don't deserve. Does this sound like you? Often saying or implying or feeling that you're not good enough. But for whom? And according to whose standards? ये very important, you're not good enough for whom? ये किसके लिए आप ये create करते हो, ये thoughts, ये feelings क्यों क्यों आती है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर पीपल प्लीजिंग की भी एक हैबिट है। यू नो हम सोचते हैं यार, मैं इस आई एम नॉट सो गुड इनफ फॉर दिस पर्सन, या उन्होंने मुझे कुछ करने को बोला मैं नहीं कर पाया, ऑल दिस थिंग्स are what make us have these thoughts. It is because of our surroundings, the people who we are with. अगर वो हमें demotivate करते हैं, हम demotivate हो जाते हैं, तो we get influenced by our surroundings. If this belief is very strong in you, then how can you possibly have created a loving, joyous, prosperous, healthy life? Somehow, your main subconscious belief would always be contradicting it. Somehow, you would never quite get it together, for something would always be going wrong somewhere. अगर ये बिलीफ हमारे में बहुत स्ट्रांग है तो हम हम कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हम दूसरों को खुश करने में लगे हैं, हम अपने आप में कंप्लीट फील ही नहीं कर रहे। I find that resentment, criticism, guilt, and fear cause more problems than anything else. These four things cause the major problems in our bodies and in our lives. Very important. Resentment, criticism, guilt, fear, इन सब के वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ में भी बहुत अफेक्ट होता है। These feelings come from blaming others and not taking responsibility for our own experiences. You see, if we are all responsible for everything in our lives, then there is no one to blame. अगर हम खुद जो भी हमारे साथ हो रहा है अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही किसी कर्म का नतीजा है, इट इज ऑल समथिंग, जैसे ऑथर ने कहा वी हैव चोजन दिस लाइफ। तो
we have to accept whatever is coming to us. जो भी experiences हो रहे good, bad, we have to have that acceptance and not blame anyone for it. Whatever is happening out there is only a mirror of our own inner thinking. I'm not condoning other people's poor behavior, but it is our beliefs that attract people who will treat us that way. जो भी बाहर हो रहा है, it's just a mirror of our own inner thinking, जो हम खुद सोचते हैं. वो हो सकता है कोई बाहर गलत कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी बिलीफ्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है. जो क्योंकि अगर हम सोचेंगे ना आई एम नॉट गुड इनफ, ये मेरे से होगा ही नहीं, तो हमें सिचुएशंस भी ऐसे आएंगे. यू नो people will come and tell us those things because that is what we believe of ourselves, na? So that is what we'll attract as well. If you find yourself saying, everyone always does such and such to me, criticizes me, is never there for me, uses me like a doormat, abuses me, then this is your pattern. There is some thought in you that attracts people who exhibit this behavior. When you no longer think that way, they will go elsewhere and do that to someone else. You will no longer attract them. Very important. जब हम खुद अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लाएंगे, that I'm doing my best, then people will start, we won't attract that negativity then जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी. बट अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये सब कोई भी मुझे लाइक नहीं करता, सब मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारे साथ और वही सिचुएशंस आएंगी, क्योंकि वो हमारी ही बिलीफ है जो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को. Following are some results of patterns that manifest on the physical level. Resentment that is long held can eat away at the body and become the disease we call cancer. Criticism as a permanent habit can often lead to arthritis in the body. Guilt always looks for punishment, and punishment creates pain. When a client comes to me with a lot of pain, I know they are holding a lot of guilt. Fear and the tension it produces can create things like baldness, ulcers, and even sore feet. यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी थिंकिंग, और जो हमारी थिंकिंग है वो फिजिकल लेवल पे हमें कैसे अफेक्ट करती है. जैसे अगर हम रिजेंटमेंट में हैं तो दैट कैन कॉज कैंसर. अगर हम क्रिटिसिज्म में हैं तो दैट लीड्स टू आर्थराइटिस. गिल्ट अगर हम होल्ड करते हैं, सेल्फ फॉरगिव नहीं करते अपने आप को, गिल्ट रखते हैं अपने अंदर, दैट क्रिएट्स पेन. उससे दैट उससे हमें खुद को भी फील होता है पेन, एंड इट अफेक्ट्स अस फिजिकली एज वेल. I have found that forgiving and releasing resentment will dissolve even cancer. Wow. While this may sound simplistic, I have seen and experienced it working. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन प्योर रखने का, विद नो नेगेटिविटी फॉर एनीबडी, ओनली पॉजिटिव लविंग ब्लेसिंग थॉट्स फॉर ईच एंड एवरी वन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे माइंड में जो भी रिजेंटमेंट है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, गिल्ट है, उन सबको हमें क्लीन करना है, अपने आप को फॉरगिव करके. जो भी जिसके साथ भी हमारा कुछ ठीक नहीं है उनको फॉरगिव करके. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. We can change our attitude towards the past. The past is over and done. We cannot change that now. Yet we can change our thoughts about the past.
How foolish for us to punish ourselves in the present moment because someone hurt us in the long ago past. कितनी बार होता है कि हम वही पास्ट की जो भी सिचुएशंस है उसको रिविजिट करते हैं अगेन एंड अगेन. वही हर्ट, वही रिजेंटमेंट, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइजिंग अदर्स फॉर व्हाट देव डन. तो उसी इंसिडेंट को बार बार रीलिव करके अपने आप को ही पनिश करते हैं, अपने आप को ही पेन देते हैं. तो ये ऑथर वो कह रहा है, हाउ फूलिश ऑफ अस. It is actually very foolish, but it's still, still somewhere or the other, we can't get over the past. वही वही बातें सोचते रहते हैं. I often say to people who have deep resentment patterns, please begin to dissolve the resentment now when it is relatively easy. Don't wait until you are under the threat of a surgeon's knife or on your deathbed when you may have to deal with panic too. When we are in a when we are in a state of panic, it is very difficult to focus our minds on the healing work. We have to take time out to dissolve the fears first. जब बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, जब माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तब वी हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ दैट. उसके लिए फिर मेडिकेशन लेनी पड़ती है. यू नो वही जैसे ऑथर कह रहा है ना कि डील विथ इट नाउ. you know don't delay it, because then it will just keep getting worse. सो तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एवरी डे हम जर्नलिंग करें. जो भी माइंड में नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें, अंदर ही अंदर उस रिजेंटमेंट को बिल्ड ना होने दें. सॉरी. If we choose to believe we are helpless victims, then and that it's all hopeless, then the universe will support us in that belief and we will just go down the drain. It is vital that we release these foolish, outmoded negative ideas and beliefs that do not support us and nourish us. Even our concept of God needs to be one that is for us, not against us. Very important. ये जो एक belief system है ना कि हम helpless है, हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है, all these negative things, ये जब हम believe करते हैं ना, बस वो और negativity ही लाता है फिर. Because the universe just gives us what we are. जो हम हैं वो ही हमारे पास आएगा. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि इट इज फूलिश टू कीप ऑल दीज नेगेटिव आइडियाज. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नीड्स टू बी वन दैट इज फॉर अस. हम ये कहते हैं ना कई बार कि ये भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा करता है. दैट इज वेरी नेगेटिव. एंड इसमें गॉड का कोई रोल ही नहीं है. वट एवर वी आर डूइंग, it is something that we have done is past that is just coming back to us. It is a manifestation of who we are. Whatever we have done in our past, जो भी हमारी कार्मिक साइकिल है, उसके वजह से ही जो हो रहा है हमारे साथ आज, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट. तो उसमें जब हम गॉड को ब्लेम करने लगते हैं, इसमें गॉड का कोई रोल है ही नहीं. इट इज आवर ओन क्रिएशन. To release the past, we must be willing to forgive. We need to choose to release the past and forgive everyone, ourselves included. We may not know how to forgive, and we may not want to forgive, but the very fact, sorry, but the very fact that we say we are willing to forgive begins the healing process. It is imperative for our own healing that we release the past and forgive everyone. I forgive you for not being the way I wanted you to be. I forgive you and I set you free. This affirmation sets us free. So, forgiveness is for ourselves, it's for our own healing, it is not for anybody else. हमें खुद को ही forgive करना है, हमें दूसरों को भी forgive करना है.
जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द वे आई वांटेड यू टू बी। नो, वो हमारी ही एक बिलीफ है, हम ही चाहते हैं कि वो ऐसा करे, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, एंड इफ दे डोंट, वो कुछ they are not according to us, then we create that feeling of resentment, hatred, and all these negative patterns. So forgive ourselves and forgive them for not being the way we wanted them to be. Okay, I think we can continue this tomorrow because हमारा टाइम हो गया है अभी. Okay, so would you like to share from today's session? हाँ जी, ऋतु सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है पर थोड़ी स्लो है. मे भी कुछ ईयरफोन का इशू। अभी ठीक है हाँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी बिल्कुल ठीक है. अभी ठीक है. ओके। अच्छा, तो सेशन से तो काफी कुछ लर्न करने को मिला। एंड जैसे लास्ट बुक हमारी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी वही था कि थिंकिंग पे बहुत ध्यान देना है। आज भी हमने वही सीखा कि द मोस्ट पावरफुल थिंग विच आई लर्न कि अभी तक जितना भी आप भले ही नेगेटिव पैटर्न में थे, कुछ भी आप सोचते थे, बट द पावर लाइज इन आवर प्रेजेंट मोमेंट। तो हमें आज से अपनी थिंकिंग को चेंज करना है पॉजिटिविटी की तरफ, वैसा। एंड सेकेंडली, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी हीलिंग अगर हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है उस हीलिंग की, तो हम उसको डिले ना करें। और कोई भी जो रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर, कुछ भी नेगेटिव हमारे अंदर जो फीलिंग्स चलती है, उसको भी हम और आगे के लिए बढ़ने ना दें, ताकि वो डिजीज का एक फॉर्म ले जाए और फिर हमें सर्जन्स के नाइफ के अंदर फिजिकली भी डील करना पड़े और मेंटली भी हमें हील करना पड़े। हर चीज दिन पर दिन अगर हम डिले करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो ये चीज भी मुझे सीखने को मिली, दैट वी डोंट हैव टू डिले आवर नेगेटिव पैटर्न, स्पेशली उसको अभी से ही वर्क करना है। सो दिस इज हाँ व्हाट जी, इट वाज। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच. दिस थैंक इज यू सो वेरी मच। इम्पोर्टेंट. हाँ जी, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एवरी डे वी हैव टू कीप हीलिंग. जो भी हो रहा है हमारे साथ, रोज के रोज उसको, उस पे वर्क करना, अपने आप को हील करना इज वेरी इम्पोर्टेंट. राइट राइट। और मैंने ना ये चीज चेक किया है कि अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ कॉन्शियसली नहीं जाते हैं ना, तो क्योंकि शायद हमें नेगेटिविटी की आदत हो गई है, या सोल ना जन्म लेते लेते कमजोर हो गई है, तो बहुत जल्दी वो नेगेटिविटी को होल्ड ऑन रखती है अपने पास। तो कॉन्शियस, राइट, राइट. हाँ, कॉन्शियसली हमें एफर्ट लेना होगा पॉजिटिविटी। जैसे ही हमें पता चलता है ना कि यार पॉजिटिविटी कम हो रही है, यार प्यार कम हो रहा है खुद के अंदर, तो आई थिंक ना एक कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा, जर्नल करके, बुक्स पढ़ के, या फिर समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, मे बी अ फूड ऑल्सो, दैट कुड ऑल्सो वर्क। लेकिन कैसे भी करके खुद को खुश करके प्यार को बढ़ा दो उसी वक्त, नहीं तो वो ना ड्रेन होता जाता है। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट ही होती जाती है अगर कॉन्शियस एफर्ट जल्दी से ना ले तो। राइट, राइट, वेरी ट्रू. राइट. हाँ जी. जी करुणा. सिस्टर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सिस्टर. थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू. करुणा सिस्टर, आप कुछ ऐड करेंगे? Thank you so much for the session, Anika sister. थैंक यू फॉर द टेक अवे रितु सिस्टर, आपने बहुत सुंदर से समझाया.
ये चीजें। और हाँ, सच में कॉन्शियस एफर्ट हमें लेना पड़ता है जब भी हम देख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होल्ड ऑन हो जाती है बहुत ज्यादा देर तक। और ये हमारे संस्कारों के वजह से आपने पूरा रिवाइज करा दिया। मतलब स्टार्टिंग जब हमने करी थी बुक रीडिंग की, उस वक्त बीइंग लव से लेकर के, और फिर हमने जो ये भी बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो बुक रीडिंग भी काफी हेल्प करती है, हमें नॉलेज देती है। लेकिन एफर्ट हमें खुद ही को लेना पड़ेगा। हमें नॉलेज मिलेगी, उसको इम्प्लीमेंट हमें खुद ही करना पड़ेगा। और ये बुक भी जो स्टार्ट हुई है, यू कैन हील योर लाइफ, इसमें भी फर्स्ट चैप्टर व्हाट आई बिलीव, तो इसमें भी बिलीफ सिस्टम के ही ऊपर दिया हुआ है। क्योंकि पहले हमें अपना बिलीफ सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। हम अपने अपनी जो हीलिंग भी होगी वो कहीं बाहर से नहीं होगी, हमारे अंदर से ही होगी। हमारे माइंड की जो सुपर पावर्स है उसको यूज करके होगी। तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम अपने माइंड के अंदर में खुद ही हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस क्वालिटी की थॉट्स चल रही है। उनको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और एक चीज वो जो बुक में लिखी गई थी कि कितने सारे डिजीजेस हो जाते हैं हमारे थॉट्स के वजह से, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, हमें क्लीन करना होगा अपने माइंड को। हर एक दिन रात को फॉरगिव करके हम सोए, सुबह उठ करके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो ये बहुत बहुत हेल्प करेगा हमें अपने माइंड को क्लीन, काम, पॉजिटिव रखने में। तो वो सारे एफर्ट्स हमें लेने हैं, अच्छे से चीज़ों को समझना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Angel. Thank you. Thank you both for joining.